Say hi to my vlog. नहीं है, which is okay, but अभी नहीं है, मतलब अभी नहीं है। Hello, good morning from Penang. कल हमारा फर्स्ट डे था पेनांग में एंड टुडे इज़ आवर सेकंड एंड फाइनल डे इन पेनांग. वी हैव अ फ्लाइट टू केएल टुनाइट इन द इवनिंग, लेट इवनिंग. लेकिन कल मैंने ज़्यादा बातें नहीं की, ज़्यादा व्लॉग नहीं किया बिकॉज यू नो ऑनेस्टली वी डिडंट रियली डू मच येस्टरडे इन पेनांग. वी वर सपोज टू गो टू the Habitat Hill in Penang, which is like a nice nature walk. You take a छोटी सी फनिकुलर ट्रेन, ऊपर जाओ पहाड़ी में, थोड़ा ट्रैक व्रैक करो, घास फूस एंड ऐसे लोकल जानवर थोड़े बहुत एंड lizards and all these things देखो, monitor lizard वगैरह. But by the time we got to our hotel, we were also hungry, so we went to a really nice cafe nearby. The cafe had really good food and the owner was very pretty. It's called the Safe Room. However, the food took forever to arrive. मतलब खाना आ ही नहीं रहा था, एक एक करके खाना आ रहा था. कुछ लोगों का खाना खत्म हो चुका था, कुछ लोगों का आ ही नहीं रहा था. ऐसे करके हुआ. फिर उसके बाद हम लोग सारे इतने एग्जॉस्ट हो गए थे. वी जस्ट डिसाइडेड कि हम लोग होटल में चिल करते हैं, रेस्ट करते हैं, शाम को बीच में जाएंगे. फिर यहाँ का एक बहुत पॉपुलर बीच है कॉल्ड बाटू फेरिंगी बीच. बाटू फेरिंगी बीच वी वेंट देयर. हमें ट्रैफिक में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा है. इट टुक सो लॉन्ग to reach the beach. However, the beach was sad. I mean, there was not too many people chilling. रात को 8 बजे के आसपास एक फायर शो स्टार्ट हुआ था, बट वैसे वहाँ की नाइट लाइफ बड़ी ऐसे बोरिंग एंड डेड सी लगी थी. तो फिर हम वहाँ से भी निकले, फिर हमने डिनर किया. डिनर हमने क्या किया, हाँ, तो बाटू फेरंगी बीच के पास ही एक क्यूट सा रेस्टोरेंट है, उसका नाम मुझे याद नहीं है. I had like spaghetti bolognese and then other people had like other stuff, and then we just took a walk. We thought okay, let's just explore the beach valley market and जो night market types होती है वहाँ भी. मतलब ठीक है, शॉपिंग का सामान था, crochet stuff, कपड़े, ये वाला फलाना, but nothing called me out. And that brings us to today, which is our final morning. तो आज का सीन ये था कि लोग जो बाकी लोग के साथ में आई हो, they've all gone to this place called the Top. So it's like on top of a building where they have like a museum and they have a rainbow bridge and like nice views and एक दो ऐसी आलतू फालतू चीज़ें. और मैंने बोला देखो मेरा तो मन है नहीं, so I'm just gonna sleep in. I'm gonna get up, get ready, and I'm gonna go straight to the street food market, which is the Armenian street market, Armenian street. तो मैं अभी बस रेडी हुई हूँ, मैंने पैकिंग शैकिंग कर लिया. वी गोना लीव आवर लगेज इन द क्लोक रूम एंड बाकी लोग निकल चुके हैं. वो डायरेक्टली मुझे आर्मेनियन स्ट्रीट ज्वाइन करेंगे जब भी वो फ्री होंगे, बट मैं भी निकलने वाली हूँ. अभी 12:30 हो गया है, तो मुझे पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा. एंड आई एम सो एक्साइटेड. फाइनल डे इन पेनांग. आउटफिट चेक, H&M, Bonkers, Uniqlo, Crocs. Let's go. Hello guys, sorry to randomly just switch to this screen, this view that you're seeing on your screen right now, but I want to talk to you about something that happened with me in Penang. मैंने अपने thumbnail में लिखा था I was being stalked.
And that is not clickbait. I was actually kind of being stalked because if you remember, I had gone to the Armenian street market in Penang, जहाँ पे मैं बहुत excited थी for all the food. खाना तो मुझे मिला नहीं क्योंकि सब कुछ शाम को खुल रहा था और शाम को हमारी flight थी to Kuala Lumpur. But I was alone in that market because the rest of the people had gone to a different attraction in Penang. So I was just strolling the markets and like just walking around, looking at stuff and like buying souvenirs and stuff. And randomly, this one guy in a brown tracksuit set, and I'm pretty sure he was a local because he had that accent and he had that thoda local look tha. He was like a little dark complexioned and like I could tell he's one of those local people there. But I was just walking around minding my own business, looking at stuff here and there, and randomly this guy's like, hey miss, while walking past me. मतलब वो ऐसे मैं चल रही हूँ, वो ऐसे चल के जा रहा है and he's just standing like hey miss while walking. And I did not reply क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे टूरिस्ट कंट्रीज में मैंने देखा है कि people just trying to say hi to you, just trying to be friends or ask you where you're from etc. So I didn't make anything of it and I just like I was minding my own business. मैं अपना चलती गई इधर उधर जहाँ भी मैं जा रही थी. उसके बाद ये बंदा मैं अभी भी स्ट्रीट्स में चल रही थी and this guy I see him on a scooter and he's passing by me again on the scooter and he's like bye miss, bye bye. Again I did not reply, I did not make anything of it, I just kept strolling around. And उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बंदा दोबारा कहीं से प्रकट हो गया, भाई पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया. And he started walking behind me and I knew because I was, once he said hi to me I was like extra aware because I was like what if something happens. So I was just like very observant and alert of my surroundings. And then this guy starts walking behind me and then he starts walking with me and then he's like hey miss, and I did not reply. And then he's like miss hello, and then I just looked at him and I gave this like very forced wala smile ki. And he's like where are you from, where are you from? I said I'm from India. Like I did not sound very friendly or anything, I was just like I'm from India. And then he says oh wow you look Arabic, you look Arabic. तो मैंने कर दिया और उसके बाद वो कहता you here alone? I said no, I'm with my family, they're gonna come here in like 5 minutes, I'm going to meet my family here. And then he's like oh okay, you are here for how long in Malaysia? I said I'm going home tonight, although I wasn't going home tonight, मैं Kuala Lumpur जा रही थी और मैं बोला I'm going home tonight. कहते oh okay okay miss, it's very nice to meet you. And then I was like, एंड देन मैं एक गली में मुड़ गई. वो हम लोग ऐसे चल रहे थे जब वो मुझसे ऐसे बातें कर रहा था और मैं ऐसे गली में मुड़ गई और फिर वो सीधा चला गया. अरे चलो ठीक है, उसको शायद 4 बातें करनी थी, पीछा छूट गया. एंड आई एम स्टिल जस्ट वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट्स, ऐसे सुवेनियर्स देख रही हूँ. एंड देन आई रियलाइज कि वो बंदा फिर से मेरे पीछे चल रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू एक्ट इनकन्स्पिक्यूअस. ओके, लाइक व्हाट ही वाज डूइंग वाज कि वो चल रहा है तो मैंने बहाने से पीछे देखा. तो जब मैंने पीछे देखा ही रैंडमली स्टार्टेड जस्ट लाइक लुकिंग एट थिंग्स इनसाइड अ शॉप कि हाँ मैं ये देख रहा हूँ. जैसे वो होता नहीं कि तुम्हारे मन में चोर होता है कि तुम किसी को फॉलो कर रहे हो बट तुम चाहते नहीं कि उनको पता लगे. तो जैसे वो पीछे मुड़ते हो तुम कुछ ऐसे करने लग जाते हो रैंडम एज इफ यू जस्ट डूइंग योर ओन थिंग, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. दैट हैपेंड. आई वाज लाइक व्हाई इज दिस गाय फॉलोइंग मी, व्हाट द हेल. आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड. एंड देन चलते चलते मैं एक ऐसी गली में पहुंच गई थी जहाँ पे शॉप्स वगैरह नहीं थी इतनी, तो वो काफ़ी सुनसान थी. मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है भाई, मेरी फट गई. आई वाज लाइक सो स्कैर्ड कि पता नहीं क्या होने वाला है बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हिज इंटेंशंस आर. डज ही जस्ट वांट टू हैव लाइक अ रैंडम चैट विद मी, जस्ट बैंटर, और डज ही वांट टू लाइक I don't know, like try to impress me and like take me out, or is he like in touch with like some other people and then they want to like, you know, kidnap me or grab me or just like I don't even know what was gonna happen. So and then by the time the people that I was supposed to meet, the rest of the people that I was traveling with, they were somewhere around. So उनसे भी मेरी व्हाट्सएप पे बात चल रही थी. तो आई वाज लाइक पता नहीं जल्दी आ जाए भाई, जल्दी आ जाए किसी तरह. और मैंने उन लोगों को बताया नहीं बिकॉज मेरे को उनको टेंशन नहीं देना था क्योंकि मैं इवेंचुअली एक दोबारा से क्राउडेड स्ट्रीट पे पहुंच गई थी. बहुत तरीके के फॉरेनर्स थे, लोकल्स भी थे, मार्केट्स थी, शॉप्स थी, सब था. बट ये बंदा फिर भी आसपास चल रहा था. तो मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे मैं चल रही थी, फिर मेरे को एक कट मिला, मैंने कट ले लिया जस्ट टू लाइक आई वॉन्टेड टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम हिम. मैंने वो कट लिया एंड देन जस्ट राइट अक्रॉस द स्ट्रीट आई सॉ दिस कॉफ़ी शॉप जहाँ से मैंने कॉफ़ी भी ली थी. आई थिंक ओमा कैफ़े, ओम्यू कैफ़े, समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट श्योर, वीडियो में था. सो आई फाउंड दिस कॉफ़ी शॉप एंड आई क्विकली जस्ट क्रॉस द रोड एंड रैन इनटू द कॉफ़ी शॉप. और कॉफ़ी शॉप में काफ़ी भीड़ थी बट मैं वहाँ चले गई बिकॉज वहाँ बहुत सारे लोग थे एंड आई जस्ट काइंड ऑफ फेल्ट सेफ बिकॉज आई जस्ट वांट टू फील लाइक सेफ, लाइक कि अगर कुछ होता भी है एटलीस्ट आई कैन आस्क फॉर हेल्प. सो आई रैन इनसाइड द कॉफ़ी शॉप. नाउ कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बहुत बड़ी विंडो थी तो वहाँ से मैं देख पा रही थी. सो आई कुड सी दैट द गाय जस्ट लाइक
वॉन्डरिंग अराउंड द स्ट्रीट्स, और वो इधर उधर देख रहा है कि कहाँ चलेगी टाइप्स, एज इफ वो मुझे ढूंढ रहा है। और मैं थोड़ा ऐसे छुप के पौधे लगे थे, बहुत बड़े बड़े पाम ट्रीज के अंदर, उसके पीछे से थी, मैं देख रही थी कि पता नहीं क्या कर रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद वो मुझे दिखना बंद हो गया। आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ कॉफ़ी, कि सारे भाई आए तो कॉफ़ी पी लेते हैं, अब क्या ही करें, कुछ खाने को तो मिला नहीं। तो मैंने कॉफ़ी के लिए ऑर्डर प्लेस किया, और फिर आई वाज जस्ट वेटिंग बाय द विंडो अगैन, एंड देन आई सी दैट ही टुक हिज स्कूटर, एंड देन वो वापस चला गया कहीं। तो शायद उसने गिव अप कर दिया क्योंकि मैं मिल नहीं रही थी या क्या, आई डोंट नो। बट ये एक्सपीरियंस मेरे लिए थोड़ा सा, आई वॉज रियली स्कैर्ड, बिकॉज यू नो व्हाट हैपन्स इज कि इफ़ यूर इन योर ओन कंट्री, इफ़ आई वॉज इन इंडिया, आई नो कि मैं अगर आवाज़ करूँगी, चीखूँ चिल्लाऊंगी तो शायद 4 लोग आ भी जाएंगे। और अगर मैं चीखूँगी चिल्लाऊंगी नहीं भी, मेरे साथ ऑलमोस्ट एवरी गर्ल इन इंडिया हैज़ बिन ईफ or like छेड़ोड़ or like seen something horrendous happen, right? विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट मेरे साथ भी 2-3 बारी जब भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई है, मैं तो धमका देती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे आसपास के लोगों ने, स्पेशली ऋषभ ने भी यही समझाया कि अगर किसी में, इफ़ एनी गाय रियली हैड द बॉल्स टू डू समथिंग, दे वुड हैव डन इट। सो इफ देर चुपके से ट्राइंग टू डू समथिंग, ऐसे चुपके से छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें फट्टू है वो, उनको एक धमकी दो वो भाग जाता है, विच इज़ ट्रू, यही मैंने सीखा था। बट व्हेन यूर इन अ डिफरेंट कंट्री, यू नेवर रियली नो व्हाट्स गोना हैपन। अगर वो बंदा लोकल है और मैं उसको बोलूँगी कि भाई ये बंदा मुझे छेड़ रहा है, तो जो लोकल लोग हैं वो तो शायद अपने लोकल का ध्यान देंगे और मुझे पागल बोलेंगे ना कि मैं टूरिस्ट हूँ भाई, अपने देश वापस जाओ, तो ये वो। तो मैं बहुत ही घबरा गई थी, एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड कि मेरे को वो कॉफ़ी शॉप मिल गया था, एंड आई वॉज, यू नो, आई हैड इनफ प्रेजेंस ऑफ माइंड टू मेक श्योर दैट आई एम इन अ public space where nothing really wrong can happen to me. And if it does happen to me, I have like 10,000 people around who can probably like try to help me, or at least are a witness to whatever's happening. So that happened. But all of this, well, when all of this was happening and when I was trying to like just like kind of get away from this guy, मैं एक और स्ट्रीट में मुड़ गई थी जहाँ पे शॉपकीपर्स थे और दुकानें थी और ऐसे स्ट्रीट साइड हॉकर्स थे. Wow, this was also really disgusting because personally I was not okay with what happened. मैं उस गली में मुड़ी और वहाँ पे एक शॉपकीपर था, slightly old because he had like all grey hair, अंकल था. वो भी pretty sure लोकल था क्योंकि दुकान पे खड़ा था, सामान बेच रहा था. लोकल नहीं भी था तो जहाँ का भी था, इमिग्रेंट था, I don't know. मैं मुड़ी तो he just said to me, "Oh miss, you're so sexy, come buy something from us." And I was like, I'm sorry, you do not call me sexy and I do not like it. And at that time I was so busy trying to get rid of the other guy in the brown tracksuit that I just completely ignored this uncle and I kept walking. This is not the way you talk to anybody. It was one thing if he would have said, okay, you're so cute, you're so pretty. ठीक है भाई, वो थोड़ा decent compliment होता है भाई. तुम ऐसे sexy सुक्सी बोलोगे तो भाई मेरे को तो पसंद नहीं है ये सब. मैं तो भाई मेरे बस की होती हूँ, मेरे देश में तो मैं तो शायद चपेट भी लगा देती. But yeah, this happened in Malaysia. I mean, I don't know what the internet says about how safe Malaysia is as a country, but this incident happened with me. So I would like to tell all travelers, whether you're a guy, whether you're a girl, just be like alert and aware of your surroundings because you never really know what can happen. या तुम्हें कोई छेड़ रहा है या कोई तुम्हारे को पिक पॉकेट करके तुम्हारा फ़ोन चोरी करेगा, तुम्हारा पैसा चोरी करेगा, बैग में हाथ डाल के कुछ निकालेगा. You just have to, anytime you're anywhere, even in your own country, you have to just like make sure that you know what's happening around you. You can't just be lost. Like आजकल मैं देखती हूँ like all of these young kids and people, they just have like earphones on and they just like listen in their own world, अपना चल रहा है, कुछ अता पता नहीं है उनके आसपास क्या हो रहा है. Don't do that guys. I never do that, especially when I'm traveling. मतलब मैं तो कभी घर के बाहर ईयरफोन्स पहनती ही नहीं हूँ unless I know कि मैं मेट्रो में एक सीट में बैठ गई हूँ या मैं कैब में एक अपनी जगह में टिक के बैठ गई हूँ. मैं ईयरफोन वगैरह भी नहीं लगाती. I always am aware of what is happening around me, and that is one reason I found out that the guy was like still following me when I had thought that he's left. So, and especially girls, please be careful. You have to take care of yourself. This is the end of the Penang vlog. I will see you in the Kuala Lumpur vlog. So take care of yourself, be safe, travel, have fun, love ya. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to